ओके मीडिया स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी थोड़ी देर में शॉर्टकट्स किस तरह बनाना है कोई भी प्रॉब्लम का मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर जो है ना, ये प्रीवियस ईयर का एक प्रॉब्लम है। एफ यानी कि फोर्स जो चाहिए हमको, कोई भी बॉडी डाउनवर्ड्स आने के लिए कम फोर्स लगता है बिकॉज ग्रेविटी इज सपोर्टिंग, एंड कोई भी बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगता है क्योंकि वी आर गोइंग अगेंस्ट टू द ग्रेविटी। सो चाहे कुछ भी हो जाए, तो प्रॉब्लम के अंदर क्या है, a force required to move up is double to that of the force required to move down बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, force downwards, when a body is coming force downwards, mg sin theta is in this direction, friction is in the opposite direction। आप जानते हैं friction का मतलब mu mg cos theta, you know about that। But here when you move upwards, friction and mg sin theta both are in a downward direction, ये जानते हैं आप लोग। तो इसलिए क्या है, फ्रिक्शन डाउनवर्ड्स व्हेन यू टेक रिजल्टेंट फोर्स विल बिकम mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। बट कोई भी बॉडी अगर ऊपर जा रहा तो फ्रिक्शन और mg sin थीटा नीचे की तरफ काम करते हैं। तो इसलिए हम क्या करें, फोर्स डाउनवर्ड्स इज डोमिनेटिंग फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स, दिस वन। एंड व्हेन द बॉडी इज मूविंग अपवर्ड्स, बोथ आर एक्टिंग डाउनवर्ड्स, फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ और mg sin थीटा भी नीचे की तरफ। सो वी आर एडिंग देम, हियर वी आर सब्सट्रैक्टिंग देम। ऑब्वियसली f अपवर्ड्स ज्यादा है, यू नो अबाउट दैट। So then let us see what is going to happen। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो यहां पर क्या बोल रहा, आप अच्छी तरह से देख लीजिए। तो F अपवर्ड्स इज डबल बोल रहा, डबल डबल, चाहे कभी भी प्रॉब्लम में डबल भी पूछ सकता है या ट्रिपल भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। इसके लिए हम एक शॉर्टकट तैयार करेंगे। अगर समझो F अपवर्ड्स इज n टाइम्स ऑफ F डाउनवर्ड्स, देन व्हाट हैपेंस। तो F अपवर्ड्स का फॉर्मूला क्या हो गया, दिस इज mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, ओके, विच इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ F डाउनवर्ड्स which can be multiplied with this total. So this can be written as mg sin theta minus n times of, because you have to multiply with n, no, so mu mg cos theta, okay, you can take like this, so cos theta। तो now यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, फोर्स के टर्म्स sin theta टर्म्स एंड cos theta टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे। तो we can just take sin theta terms to one side, okay, so I am going to write now sin theta terms I'll take to one side, this side let us imagine, or you can take cos theta terms to this side and sin theta terms to this side। तो अभी देखो, you can common out here mu mg, if you common out then what is left now, mu mg if you common out you'll be getting cos theta, okay, and if this term comes to left side, what is going to happen, plus, okay, you can common out here now, I think you can common out even cos theta also। यहाँ पे mu mg cos theta अगर कॉमन कर दे तो फिर क्या होता, it is going to become 1 plus n, okay, so you are transferring this term to left side and you are commoning this mu mg cos theta, so 1 plus n। तो यहाँ पर अभी क्या है, this is going to be mg sin theta, okay, and n is here, when this sin theta terms goes to that side, it is going to become minus 1, okay, so here mg gets cancelled now, so what are we going to get now, let's see here। तो यहाँ पर देखो, he is asking us to find out angle, no, so a very simple thing is you just take mu here, okay, so mu you write like this, and sin theta you will consider here by this cos theta into, you can write n minus 1 divided by n plus 1 here, okay, so that is, you can eliminate this one, okay, so just write now like this, n minus 1 n plus 1, this n plus 1 goes downwards, so then you will be getting now mu is equal to tan theta n minus 1 by n plus 1, okay, so your shortcut formula is ready now। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट फार्मूला, ओके, इस फार्मूला को यूज करके आप प्रॉब्लम इतना आसानी से कर सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, सलवटो में इसको सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू रिमेंबर दिस शॉर्टकट, आई टोल्ड यू द कॉन्सेप्ट आल्सो, दिस इज अ शॉर्टकट। अब किस तरह इसको अप्लाई करना है अभी देख लीजिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है, डबल, ही इज टेलिंग इट इज गोइंग टू बी डबल, ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम इट इज गोइंग टू बी डबल हियर। सो इफ इट इज गोइंग टू बी डबल, दैट मीन्स n इज गोइंग टू बी 2, दैट्स इट, द सिंपल थिंग इज, so you'll write now mu
you'll write tan theta, then n means 2, so we write 2 minus 1 by 2 plus 1, that's it. Okay, so mu is equal to tan theta, in brackets we can write 1 by 3. So this 3 if you transfer here, you'll be getting tan theta is equal to 3 mu. So therefore theta is equal to tan inverse of 3 mu. So your answer is ready. So your answer is going to be the fourth option. So ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है आप लोगों को, बस इतना सा अगर फॉर्मूला अगर याद है ना, तो whenever this type of problem comes, you can solve the problem in fraction of seconds very easily. Hope you have enjoyed this one. Thank you. तो ये जो प्रॉब्लम है प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है, यानी कि लास्ट ईयर जो जेई मेंस का प्रॉब्लम है. अब इसका लेंथी सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए आप लोग. तो यहाँ पर क्या हुआ, फोर्स इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली ऑन ए हैंगिंग बॉडी. ओके, सो फोर्स, टेंशन एंड वेट. तो यहाँ पर जो है ना, इसने लैमिस थ्योरम अप्लाई किया, तो इतना बड़ा प्रोसेस अप्लाई किया है. तो मैं आपको ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा कि आपको सर्वोटा में आंसर आ जाए. विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स यू विल गेट द आंसर नाउ. सो हाउ कैन यू डू दिस वन? इट्स अ वेरी सिंपल मेथड दैट, देखो, दिस मेथड कैन बी अवॉइडेड. एंड जस्ट सी, दिस इज टेंशन T. यू कैन ड्रॉ वन लाइन लाइक दिस अपवर्ड्स. ओके, एंड दिस इज 30 degrees. ओके, alternate interangles है ना, ये भी 30, ये भी 30. These both are going to be 30 here now. So if this is tension T, this is going to be T cos theta. T cos theta means you can take T cos 30. Okay, so T cos 30 you're going to consider. I know this T cos 30 downwards is mg, that's it. Okay, so you can write now T cos 30 is equal to root 3 into g. g मतलब 10. ओके, सो यहाँ पर क्या है, cos 30 is nothing but root 3 by 2 which is equal to root 3 into 10. So in just one step you got the answer. एक ही स्टेप के अंदर आंसर आ गया. तो your answer is going to be how much? It is going to be 20 newtons. That's it. Okay, so 20 newtons. Instead of doing all this Lami's theorem, a single step method is enough to solve the problem. Hope you have enjoyed this one. Thank you very much. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अभी ये जहाँ क्वेश्चन देख लिया आप लोग, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग. ये हो गया द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन 2022. किसमें पूछा गया ये क्वेश्चन? जेई मेंस के अंदर पूछा गया. अब इसका ये जो आंसर है ना, ये बहुत बड़ा बला है. ये इतना बड़ा आंसर है, करने वाले को कैंसर आ जाएगा और नहीं आया तो डांसर हो जाएगा. मैं आपको एक आसानी से कैसा शॉर्टकट बताऊंगा कि सलवटों में आंसर आ जाएगा. खाली पीली दिमाग ख़राब करने का नहीं, बहुत आंसर आसानी के साथ कर सकते हैं. इतना बड़ा प्रोसेस, इसको ज़रूरत ही नहीं है. मैं आपको इतना आसान टेक्निक्स और ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा. अभी देखिए आप लोग, तो सबसे पहले ये सब करना है. ये जो ना एक्चुअली ये जो सिस्टम है ना, इसका एक्सेलरेशन मालूम करना है हमको. एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए ये सब फ्री बॉडी डायग्राम, ये डेड बॉडी डायग्राम की जरूरत नहीं. ओके, हम इतना आसानी से कर देंगे कि आप लोगों को मजा आ जाएगा और एग्जाम के अंदर भी टाइम ज्यादा नहीं लगेगा इसके अंदर. तो क्या है भाई इसका आंसर, इसका शॉर्टकट क्या है? अभी देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेट ऑफ द हैंगिंग बॉडी माइनस फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नेट मास. ये फॉर्मूला काफी है आप लोगों को सॉल्यूशन लाने के लिए. जब कभी भी फ्रिक्शन का प्रॉब्लम आता है तो वेट ऑफ द हैंगिंग बॉडीज माइनस फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नेट मास. इतना सा फॉर्मूला अगर लिख दिया ना तो इतना मजा आएगा आपको. देख लीजिए आप लोग. तो अभी क्या है, एक्सेलरेशन. ओके, सो वेट ऑफ ए हैंगिंग बॉडी कितना है? 4. सो इसको ले सकते हैं 40, बिकॉज 4 इंटू जी, दिस इज टेकन एज 4 इंटू जी, दैट इज 40 kg, 40 न्यूटन्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स. अभी फ्रिक्शन कितना है यहाँ पर? फ्रिक्शन मालूम कर दीजिए. यहाँ पर कितना है फ्रिक्शन? ओके, सो यू कैन फाइंड आउट द फ्रिक्शन. आसानी से फ्रिक्शन मालूम कर सकते हैं. और फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू एम जी. सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू कितना है यहाँ पर? 0.02 इंटू एम. एम कितना हो गया? 40 इंटू जी मतलब 10.
ओके, सो यहाँ पर ये 2 जीरोस कट जाएंगे तो फिर ये दो जीरोस भी कट जाएंगे। 4 टू जा 8 न्यूटन्स, सो फ्रिक्शन हो गया 8 न्यूटन्स। सो 40 माइनस 8 डिवाइडेड बाय नेट मास मतलब 40 प्लस 4, सो ये हो गया 44। बस इतना सा आप कर लेंगे ना तो आपको आसानी से आंसर आ जाता। ये क्या होगा 40 माइनस 8, यानी कि दिस इज गोइंग टू बिकम 32/44। तो ले आ गया। तो एक ही स्टेप के अंदर हम फाइनल आंसर तक पहुंच जा रहे हैं। जब इतना आसान मेथड है तो क्यों खाली पीली इतना सारा दिमाग खराब करने का है? थोड़ा अकल से काम करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो हमारा मकसद ये है कि बच्चों को आसानी के साथ आंसर आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, उनको भी मज़ा आएगा, हमको भी मज़ा आ जाएगा। तो होप आपने एंजॉय कर दिया इसको। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।